political parties. Let me get in Atikur Rahman ji here quickly. Atikur Rahman ji, you are an independent political analyst. Now, do you believe what the Karnataka government today has done is completely acceptable? It is kosher. We should just live with this. Dipti, good that you had called both the political parties and both are in the dock. Appeasement should not be the basis of, granting any of these pardons. But the difference Mr. Pradeep Bhandari today is asking is, the only difference, Mr. Pradeep, in this case is, nobody, no Muslim organization will be calling these peoples of the AIM that they are the Sanskari Muslims, which you had done in Gujarat, you had done in UP, in the Muzaffarpur riot cases. But Atikur Rahman ji, you are digressing, sir. This is a pure law and order issue. Now tell me something. How fair is it for the government to give these people a free pass? Now today Shafiqullah ji says that they had a committee. The committee decided that a lot of these people are not even guilty. They were not present there. Who are they to decide? Aren't there courts in the country? Fundamentally, Dipti, I don't understand, and a legal luminary can argue on this. Why are the state governments given this power? It should be immediately withdrawn, because nowadays these are the only governments which accrue all hate mongering, and their own people are freed later on, calling Sanskari. So I do not understand under what legal terms the state governments have this power. I think the legal people, the Supreme Court should take cognizance, and the state government should be away from. So you believe this is wrong, sir? You believe this is wrong? The very fact today that people who are responsible for all this commotion, this fracas today, have been given a free pass for pelting stones at the police station, have been given a free pass. You believe this is wrong? Ravindra Singh ji, before I also get an Anurag into this conversation, Ravindra ji, you represent the Samajwadi Party. अब आप लोग allies है कांग्रेस के. आप कांग्रेस को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दीजिए. अगर इस तरह की अपीजमेंट की जाएगी, सर कितना दूर जाएंगे ऐसे अपीजमेंट करते करते? लैंप पोस्ट का मामला हो, पीएफआई का बात हो, एसडीपीआई की बात हो, तमाम मुद्दों पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब सिर्फ एक मुस्लिमों की पार्टी बन गई है और ये चार्ज भाजपा लगाती है. क्या ये सही है? भारतीय जनता पार्टी का इतिहास फजलुर रहमान के साथ शुरू होता, 3 जगह सरकार बनाने के साथ में, जिसने भारत का डिवीजन कराया और पाकिस्तान का गृह राज्य मंत्री बना. ये भारत इतिहास है. आप हुगली की बात करते हैं. आप कांग्रेस का चरित्र जानना चाहती है तो हुगली के बारे में सुनिए. उमा भारती 1994 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, हुगली में उसने दंगा कराया जाके. और जो आपने पेल्टिंग वोल्टिंग सारी बातें की, सब किया, आदमी मरे, पुलिस पे भी पत्थरबाजी कराया, पुलिस भी चोट में गई, और उसका दंगा का केस उमा भारती का कांग्रेस सरकार ने वापस लिया था. ये चरित्र है कांग्रेस का. अभी कन्वर्ट करिएगा. फिर आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है. भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे 3 दंगे के मुकदमे वापस ले लिए. क्या कोर्ट नहीं था? तो आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया था ना रविंद्र जी, आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया था उनको. क्या कांग्रेस ने जो किया है कर्नाटक में वो सही है? कांग्रेस ने तो उमा भारती को भी छोड़ दिया. क्या वो गलत था? आप बताइए, आपको क्या लगता है? आप बताइए क्या गलत था? सर मैं क्यों बताऊंगी? पॉलिटिकल पार्टी आप है, आपके दोस्त है कांग्रेस वाले. मैं तो सवाल पूछूंगी ना सर, मैं क्यों बताऊंगी आपको? लेट मी कंप्लीट. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20,000 दंगाइयों का मुकदमा वापस ले लिया. कानपुर में गंभीर दंगा हुआ था, वहां के 31 दंगाइयों का मुकदमा वापस ले लिया. ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का. चलिए, आप चरित्र की बात कर रहे हैं, आप चरित्र की बात कर रहे हैं. आपने मुझे मजबूर किया अब एक फैक्ट रखने के लिए, और ये फैक्ट आपके कांग्रेस के दोस्तों को भी जानना चाहिए. प्रदीप, आई विल कम टू यू. ये साल है सर 2024 में 2013 में एक अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी इन उत्तर प्रदेश में, जिसने ये कहा दे वांटेड टू विथड्रॉ चार्जेस अगेंस्ट 15 टेरर अक्यूज्ड ऑफ किलिंग 43 पीपल. आपको ये याद होगा. इसमें 4 मैन थे जो 2002 में पकड़े जाते हैं अंडर पोटा फॉर लीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रूप मूवमेंट ड्यूरिंग द करगिल वॉर. These are 5 terrorists charge sheeted for the involvement in the attack on the CRPF camp. आप कहते हैं कि इनके खिलाफ सारे चार्जेस विथड्रॉ कर देने चाहिए. ये मामला कोर्ट जाता है सर, और कोर्ट ये कहता है रविंद्र जी, and I'm quoting, if terror suspects were set free in such a manner, the common man will not be able to live peacefully. It seems to be a purely political decision. तो ये तो समाजवादी पार्टी की भी हकीकत है. अब आप में और कांग्रेस में क्या फर्क रह गया सर?
पार्टी का चरित्र बता दिया। अभी और सुन लीजिए, गुजरात के दंगे के सजा अरे आप अपने बारे में बताइए ना सर, आप समाजवादी पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, एसपी की बात करिए ना। मेरे बारे में क्या पूछना चाहती है आप बताइए ना। हमने एक भी दंगे के मुकदमे के वापस नहीं लिया था, एक केस में लिया था, बाराबंकी में अरेस्ट थे, कोर्ट ने वापस कर दिया, हम लोगों ने उसको मना कर दिया। हाँ तो किया आपने भी ना सर, कोशिश आपने भी की। प्रॉब्लम वही है कि अपीजमेंट आप सब लोग करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। बलात्कारियों का करती है, बलात्कारियों के मुकदमे, जिसे पेट फाड़ के हत्या की गुजरात दंगों में, उसके आजीवन कारावास की सजा माफ की, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। तो ये जस्टिफाई करता है व्हाट कांग्रेस हैज डन, व्हाट द एसपी हैज डन। प्रदीप, जस्ट गिव मी 30 seconds, I want to get Anurag into this